हरे कृष्णा। तो इस वीडियो के ज़रिए हम ये चर्चा करेंगे कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं और बहुत ही ऐसी जो द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग्स इन योर लाइफ, द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग्स दैट यू कैन एवर अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो ऑफकोर्स ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, सिर्फ इस वीडियो तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से हम वीडियो के अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि इस ज्ञान को और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान नहीं, जो ज्ञान है, द नॉलेज, because that's the only knowledge that exists, is the eternal knowledge. जो knowledge जो सनातन है, that's the meaning of sanatan. Sanatan means जो इस बॉडी के परे भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये बॉडी सनातन नहीं है। I'll try to explain how. अभी मेरी जो उम्र है वो 27 साल के करीब है, और 27 आज से अगर मैं 10 साल पहले का सोचूं अपने बारे में, माई परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ was that of a teenager boy 17 years old, और जो कि I think I was in my first year of engineering. So that's what I was thinking, that I'm that boy that who goes to the classes, attends lectures in the college, who lives in a hostel, और इस तरह का मेरा परसेप्शन था। और मैं वो था भी, करेक्ट आप कहेंगे, हाँ मैं वही था। और अगर आज से 20 साल पहले का परसेप्शन देखें, जब मैं 7 साल का था, तो आई वॉज लाइक अ वेरी स्मॉल किड। तो मुझे याद है जैसे उस एज में मैं खुद पतंग नहीं उड़ा पाता था, तो मेरे जो कज़न्स थे वो काफ़ी मेरे से बड़े थे, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप मेरे को उड़ा के दो। और तब मेरा परसेप्शन यही था कि आई एम सच अ स्मॉल किड कि मेरे को पतंग तो उड़ाना नहीं आता। इट विल बी सो काइंड ऑफ ग्रेटफुल, आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर दिस गाय इफ ही काइंड ऑफ जस्ट फ्लाइज द काइट एंड हैंड्स इट ओवर टू मी। तो ये भी मेरा परसेप्शन था, वो भी मैं ही था, मुझे लग रहा था। तो ये परसेप्शन, दिस now the real knowledge that I want to kind of convey is all of this is my perception of myself. It's not really the self, it's not myself. Myself is the one who is perceiving all these perceptions. In all these years, in all these bodies, I have remained the same. When I have remained the same, so that's what I really am. So who am I then? So that's where Shastras come in. Shastras tell you that you exist beyond these perceptions. You can't be perceiving anything about you. One day you are thinking you're a dog, you will be behaving like a dog. You will be and then other day you die, you take birth as probably a human, and here you are thinking 7 years later that you're a small kid, and few years later you are thinking that you are a college going student, and then few years later, right now I'm thinking I'm a married man. So I have grown up a lot, and I'm gonna have kids, and I'll start a family. That's what I'm thinking. That's what my perception of myself is. But it's really important to understand who am I. And then when you understand your existence, when you understand yourself, when you question yourself, मैं हूँ कौन, and
you will immediately, because it's the only thing that you can be, 100% sure about. Anything that you see in the world is a very relevant truth, uh, relative truth. It might not be absolute. It's what you are perceiving. But to know who you are, you need not perceive through your five senses. You need not see yourself. You need not hear yourself. You need not. You get my point, right? Like all the external senses, you need not use any of that, and just question yourself: who am I? When you do that, you will know that I am not this body. I am not. Uh, I do exist. It's when I say I'm not this, I'm not that. That doesn't mean like that's the only. I don't have like a negative definition, right? It's just that we first kind of get surprised that, oh, I'm not this, then who am I? So you are life. So whatever you are, basically, that can't be really defined through words. So that's very sacred, and you understand what I'm trying to say. You realize it. But let's try to name it so that we can kind of go ahead with our conversation. So let's say you are a soul. So you are a soul which exists outside the body. And और जब आपको ये पता चलता है कि अब आप जो हो, that soul is eternal, you are eternal, तो आप कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, राइट? कभी ऐसा टाइम था ही नहीं कि आप एग्जिस्ट ऐसे बहुत सारे टाइम थे कि आप अपने आप को कभी कुछ सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी टाइम नहीं था कि जब आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और ऐसा भी कभी टाइम नहीं आएगा जब आप एग्जिस्ट नहीं करोगे. आप सोचोगे कुछ कि मैं अभी कुछ हूँ, आज से 10 साल बाद मैं कुछ और सोच रहा हूँ अपने बारे में, जो आज सोच रहा हूँ वो नहीं सोचूंगा. माई परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ विल चेंज, बट आई विल नॉट चेंज. बट वेन यू अंडरस्टैंड योर इटर्नैलिटी, आप जब समझ जाते हैं कि आप तो हमेशा ही एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट खत्म हो जाती है, अननेसेसरी अटैचमेंट. सो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी, जैसे अभी भी ठंड है तो मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ. मैं पागल नहीं हो जाऊंगा कि मेरे को ठंड लगनी बंद हो जाएगी कि मैं तो इटर्नल हूँ, मैं तो बॉडी नहीं हूँ. बट आई एम राइट नाउ फीलिंग द कोल्ड, तो अभी मैं जैकेट पहनूंगा, मैं पागल नहीं हूँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब आप अपनी इटर्नैलिटी समझते हैं, बट आई एम नॉट अटैच्ड टू, अगर अभी ठंड लगे भी, आई विल अंडरस्टैंड दिस इज ऑल टेम्पररी, राइट? सो दिस नॉलेज व्हेन इट कम्स टू यू, ये ज्ञान आपकी लाइफ बदल देता है. उसी एक पॉइंट में आपका जो लाइफ का मोटिव्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. आपकी लाइफ को समझने का तरीका से चेंज हो जाएगा. आप हिंदू मुस्लिम करोगे नहीं. आपको पता है मैं कल को मुस्लिम पैदा हो सकता हूँ, कल को मैं पाकिस्तान में पैदा हो सकता हूँ, तो इंडिया को भी गाली दे सकता हूँ. आप, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाउ यू एग्जिस्ट आउटसाइड योर बॉडी एंड हाउ यू कीप ऑन चेंजिंग योर बॉडीज. एंड नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस सीम्स, बिकॉज अब अननेसेसरी, जब तुम्हारी अननेसेसरी अटैचमेंट नहीं है, मतलब ठीक है कि मेरे को ठंड लग रही है, मैंने ये जैकेट डाला, बट क्योंकि अगर मैं एक एटर्नल बीइंग हूं ही, तो यार मेरे को क्यों जैकेट पहननी है? व्हाई कांट आई जस्ट एग्जिस्ट blissfully? Why can't I just eternally live peacefully? Why all of this struggle? You might ask. You should ask. Because that's, ये जो सवाल है कि मैं क्यों हूँ, फिर ये सब क्यों चल रहा है, अगर मैं इटर्नल हूँ तो ये सब, ये सपना है क्या है,
ये क्यों चल रहा है? दैट्स द क्वेश्चन यू शुड आस्क। और ये क्वेश्चन ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बहुत टाइम से पूछ रखा है और बहुत टाइम से आंसर भी हो रखा है, और जिन्होंने आंसर किया है उन्होंने तुम्हारे लिए लिख भी रखा है कि ऐसा ऐसा करके है, और सब कुछ मतलब इट्स ऑल गिवन। और बस तुम्हें बस इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना है और इसको समझने की कोशिश करना है, तो तुम भी समझ सकते हो। और ये हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन में इन द हार्ट ऑफ ऐसा लैंड, जिस लैंड में आई थिंक हर तरह के रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है, तो इट ऑल मेक सेंस कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी हिस्टोरिकली बहुत एडवांस्ड होनी भी चाहिए, और थी भी। हमें पता है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कल्चरली वेरी वेरी रिच लैंड। Like when I say India, I'm talking about this area where what today's India is, and also some adjoining countries. वहाँ पे भी ये cultures prevalent थे, but अभी अगर आप देखो तो मोटा मोटा इधर ज़्यादा it's being kind of saved। और क्या प्रॉब्लम है उसको, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप इटर्नल हो, आप और आपको ये सब की चीज चाहिए, की स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उसी के बाद आप इस चीज को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे कि यार ये सिर्फ इंडिया में इतने ज्यादा लेवल पे अवेलेबल है और कहीं पे नहीं है। मतलब इट्स आई मीन इन आवर the concept of self and God has been explained so much by so many people in the rest of the world। बहुत गिने चुने लोग थे जिनको गॉड रियलाइजेशन था, और क्योंकि गिने चुने ही थे, वो सबको नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने ऐसा मतलब जितना बता सके तो उतना बताया। तो लेकिन यहाँ पे तो सबने मतलब बहुत बहुत बताया, इतना बताया कि ऐसा भी बोला कि इसके बाद और कुछ है नहीं बताने को, ये सब दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। तो आप कंपैरिजन करो द लेवल ऑफ एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टुडेज इंडिया हिस्टोरिकली। आज वो नॉलेज नहीं है हम लोगों के पास में, और एक एवरेज इंडियन के पास में अभी भी लोगों के पास में है। इंडिया में तो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी है ये नॉलेज, बट जनरली हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उस चीज़ में। तो मोस्ट लाइकली अगर ऐसा ही चलता रहा 1-2 जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है इस नॉलेज की, इससे भी ज़्यादा। सो दिस वी नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड तो जब हम बात करते हैं कि यू शुड काइंड ऑफ नो, अगर आसपास का सब कुछ आपको समझना है कि क्या हो रहा है और क्या स्टैंड आपको लेना चाहिए, यू हैव टू फर्स्ट सी ऑल ऑफ दिस एज अ न्यूट्रल पर्सन। और न्यूट्रल पर्सन आप तभी बन पाओगे जब आप अपनी इटर्नैलिटी को समझोगे। अगर आप अपनी बॉडी ही समझते रहोगे, अपने रॉन्ग परसेप्शंस बनाओगे, तो रॉन्गली आइडेंटिफाइड सेल्फ परसेप्शन की वजह से आप रॉन्ग डिसीजंस भी लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।